So good evening and welcome to the Wednesday session. Today the agenda is the fourth chakra, Anahat chakra or the heart chakra. And before we start with the agenda today, let's have some people share about the benefits that they have got from the earlier sessions where we have discussed the lower three chakras, the root chakra, the sacral chakra and the solar chakra. So कौन share करना चाहेंगे अपने experience? Yes. Over to you. सर हाँ जी, पहले तो अब में जो फर्क है बहुत काफी अच्छा है, काफी इम्पैक्टफुल है। कभी भी सिचुएशनल रिएक्शंस जो होते थे वो बहुत कम हो गए हैं और एकदम करेक्शन में चले जाते हैं इमीडिएटली। लाइक वी स्टार्ट एनालाइजिंग कि अरे ये फिर वापस जा रहे हैं लोअर चक्रा की तरफ है। ये जो एक्शन है, दिस इज अबाउट लोअर चक्रा एंड आई एम नॉट सपोज्ड टू बी गोइंग बैक देयर बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स हायर चक्रास। तो वो चीजें एकदम से पकड़ में आती है इंस्टेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। So your awareness has gone up. I would say your awareness has gone up and you can catch yourself from slipping. Spiritual journey, as I always say, is a journey of a spider. आप ऊपर चढ़ोगे फिर फिसलोगे, तो अगर फिसलते हुए आपने अपने आप को देख लिया तो आप जल्दी से कैच करके अपने आप को दोबारा से वापस जर्नी में जाना। Nothing wrong in falling down, but you have to bounce back fast. Very good, नीता जी, बहुत बढ़िया। और कुछ जो चक्रास की डिटेल अमित जी भी डालते हैं तो उसमें जो हेल्दी चक्रा है और जो अनहेल्दी चक्रा के जो पॉइंट्स डाला होता है, तो काफी सारे हेल्दी वाले में भी होते हैं पर एक आधी पॉइंट अनहेल्दी वाले का भी होता है। तो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड कि whether it's proper healthy or needs more rectifications and all. So these are the things which I keep analyzing and working towards it. Very good. It is an indication. It is an indication. It will never be all white and it will never be all black. जी, क्योंकि कोई बोलते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि भाई हार्ट चक्र में मेरे ब्लॉक्स हैं, दैट मींस मेरा तो हार्ट अटैक होने वाला है। नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। ऑल योर 7 मेजर चक्रास आर वर्किंग फाइन, दैट्स व्हाई यू आर इन अ हेल्दी कंडीशन। नंबर 1, वी आर टॉकिंग ऑफ योर कॉन्शियसनेस एट द चक्रास। आपकी पूरी लाइफ किस कॉन्शियसनेस से चल रही है, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। सो पर्सन हु इज एट द कॉन्शियसनेस ऑफ रूट चक्रा कैन हैव ऑल द चक्रास क्लियर, कोई ब्लॉक्स नहीं होंगे, बट कॉन्शियसनेस अभी रूट चक्रा की है। यू अंडरस्टैंड? There could be somebody who is at the solar chakra and his 3 major chakras could be blocked, but his consciousness is at solar chakra, so he could be very, very successful in life. He won't be a suffering victim. He would be successful in life. Materialistic world में successful है, लेकिन full of anger and full of hatred and full of jealousy. So his chakras are blocked. Solar chakra is completely blocked, but he is operating from there. Correct? And somebody can be at third eye chakra, all the chakras clean. मतलब he is there for sainthood, right? So all the chakras clean doesn't mean that you are absolutely enlightened. No, it only means आपकी consciousness अभी कहाँ है वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही as I've shared with many of the people who are taking healings from me, आपके चक्रास में जो ब्लॉक्स आते हैं वो पास्ट लाइफ्स के भी हैं, प्रेजेंट लाइफ के भी हैं और एक कार्मिक साइकिल के हिसाब से आते हैं। They get downloaded into your life every 7 years. It's a 7 years karmic cycle. So every 7 years you will get new blocks in your chakras and you will keep healing. अगर कर्मास आपके सही करोगे, अगर सही कर्मास करोगे तो then the backlog will not come back. वो तो वैसे भी वापस नहीं आएगा, लेकिन नए कर्मास से आप फिर blocks create कर लोगे. So you have to be very, very careful about your present karmas. That is very, very important, right? Yes, Nita, you had a question? जी, like suppose the higher chakras are clear and clean and good condition and lower chakras are not so I mean, what does that mean? It doesn't mean anything. It only means there are blocks. That's it. 7 मेजर चक्रास हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉक्स हैं, तो आपके पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ में कुछ आपने ऐसा किया है या सोचा है या फील किया है। See, mental, emotional and karmic blocks are there always. Mental block is you have a negative thought, it can create a mental block in your chakras. Emotional block, अगर आपको कोई strong emotion आ रही है, sadness, loneliness, okay, dejection, frustration, so these emotions can create some blocks in your chakras, correct? And if you have done something wrong, that is a karma. You have done some deed. धोखा दिया किसी को, चोरी करी आपने, किसी का मर्डर किया, या पिछले जन्म में किसी को 5 लोगों को मार दिया, किसी को दुख दिया, चोट पहुंचाई, जो भी दिया है. So these are karma. So they will have stronger impact in your chakras.
सो पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के मिला के आपके ये चक्रास आपके ब्लॉक्स में दिखेंगे और ये पीरियोडिकली आपके 7 years के कार्मिक साइकिल में आते रहते हैं. सो दे विल डिफाइन ईदर सिचुएशंस इन योर लाइफ. और इन सिचुएशंस के सामने आप कैसे अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हो. दैट्स व्हाट यू सेड. नाउ यू आर नॉट रिएक्टिंग बट यू आर रिस्पॉन्डिंग. सो यू बिकम मोर अवेयर एंड मोर कॉन्शियस. सो यू आर बिकमिंग प्रेजेंट कर्मा आपके बहुत फुल अवेयरनेस के साथ हो रहे हैं. सो यू देयर आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग ब्लॉक्स नाउ, राइट? So you become conscious of it, and then if you're conscious, obviously you will not do anything wrong. Wrong in the sense that you will not create more blocks, right? So you will experience positive emotions, positive thoughts, and positive karma. So आपका मनसा वाचा कर्मणा जो है, that could be positive, that would be positive, and then you will not develop any fresh blocks. So life will be smooth. तो अगर कोई tough situation आ भी जाती है, तो you will be able to sail through it. Correct. That's what I meant, right? Thank you. Yes. So any question on that? Anybody who has got more confused after what I said? No, sir. Can I have just one question? I am staying in office only for your lecture because I don't want to miss it. I said, let me stay here only. I have one question. Now, suppose there's a situation where you have to take a decision in which because there are a variety of people, with whom you have to deal. Now, when you do justice according to your understanding, which obviously is, not wrong as such, not wrong only rather, I would say, but there could be some people who are against it, but it is not for your own self, it is for the benefit of everyone. In that situation, how does this karmic cycle affect? See, whatever action you take, you will have to bear the consequences. So the moment you take conscious action, you will weigh the pros and cons, and then you will take a decision which is best for everybody, and be ready for the consequences, whatever it is. Okay. सत्य और धर्म के मार्ग पे चल रहे हो ना. हाँ. तो युधिष्ठिर ने झूठ बोला तो उसको फल भुगतना पड़ेगा. That's it. और सत्य के मार्ग पे चलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को भी कुछ भुगतना पड़ा था. That's it. You will face the consequences. Be aware of it. आ गया तो आएगा ना, देखा जाएगा. Okay. Right now, this is the best decision I will take because it is a welfare for the humanity. That's it. Okay. That is how we will take your decision. But that comes at a little higher at the throat chakra. We have jumped a couple of chakras higher. That is Satya Dharma ka jo hai. No, sir, I ask this question because many times I have to take a decision which is, impacting other people. So there are some people who are not comfortable because they say, "Nahi, why to give?" But I said, where it is required, you have to give. You cannot, hold your hand because it is not the right thing. Ultimately, why you have to do wrong with anyone? For what? So I just see how you will analyze your life is at the root chakra. You will take a decision based on survival. At the sacral chakra, you will take a decision based on your pleasures. What is right for you or what is wrong for you will depend on what is attractive to you and what is repulsive for you. If you don't like somebody's face, you will go against him. As simple as that. Because you are finding him very repulsive. तो आप sacral chakra से अगर operate करो, pleasure and pain पे operate करोगे. All your decisions are based on pleasure and pain. No, sir. No, I'm telling you. I'm not telling. Hold on. I'm just analyzing a person's behavior. Okay. See where you are. If you are taking a decision of the solar chakra, you will take it from the position of power and control. I want to dominate. That's it. That is where the domination will come from. Correct? Heart chakra, you will take a decision. How can I contribute to this person? Or how I can contribute to humanity? That will be the decision. Contribution, love, acceptance, understanding. जो अमित जी ने आज पोस्ट में डाला था वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज दिखेंगी. दैट विल बी द फंडामेंटल फाउंडेशन फॉर योर टेकिंग ए डिसीजन. इफ यू आर एट द थ्रोट चक्रा कॉन्शियसनेस, देन यू विल बी ऑन योर सत्य एंड धर्म. आप अधर्म के रास्ते पे जाओगे ही नहीं. सत्य और धर्म के मार्ग पे चलना है. लोग नाराज होते होने दो, एंड यू विल स्टैंड बाय इट फॉर योर लाइफ टाइम. आप उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो. दैट इज द ग्राउंड चक्र. Then if you are at the third eye chakra, you will get divine wisdom. Divine will guide you what is to be done. अपने छोटे से दिमाग को प्रेशर देना ही नहीं है. डिवाइन से पूछ लो, डिवाइन बता देगा. Comes to you as intuition. You follow that. That is how you have to understand your consciousness level कहाँ पे है. So good question, Suman ji.
help me explain to you how you can actually see where you are when you're taking a decision. Okay, good. Let's acknowledge Sumanji for that. Very good. Right, now coming back, if you are looking at, by the way, why are the videos off? Baljinder ji, Pooja ji, Sylvia ji, Amit ji, कहाँ है वो? वापस आओ. मेरा कुछ Zoom में कैमरे का इशू चलता है. No problem. That's fine. That's fine. मेरे end पे ये on दिखा रहा है, but I'm sure that nobody can see. Strange. That's fine. No issues. As long as you are there, it's fine. मैं relog. Good. So when we are talking of heart chakra or anahata chakra, you would first see आप तमोगुण से ऊपर आ चुके हैं. नंबर 1. So first of all you have to understand आपकी spiritual journey में आप ego को transcend करने की position में अब आ गए हैं. You are moving from the solar chakra to the heart chakra. So what will be your methods or what is the kind of lifestyle that you will be living to overcome that? That is what we are going to discuss today. ठीक है, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे. लेकिन मेनली आपको ये देखना है कि हार्ट चक्रा के बारे में जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले लॉजिस्टिकली जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बता दे दो. So heart chakra is the center of the chest. Everybody knows that, and those who are healers, they would know the position is right here at the crisscross of the heart, right? So this is where you will place your heart or hands, and you can heal your heart chakra by touching. This is for the healers, by the way. So this is the heart chakra, front and back दोनों होता है. Heart chakra is the seat for what? Unconditional love. We know that, right? So unconditional love यहाँ पे है. Love, forgiveness, acceptance, gratitude, understanding, compassion, all these positive qualities are this is the seat for the positive qualities. अभी तक positive में नहीं आए थे. This is the first center balancing chakra जो है, यहाँ पे आपको divine qualities या positive qualities को experience करेंगे आप. That is when it is balanced and all the prana shakti is flowing through it, then you will experience this. Otherwise blocked होगा तो क्या होगा? तो दिल का दौरा भी पड़ता है ना लोगों को. तो क्या होता है? दुख होता है, दर्द होता है, sadness, loneliness. So that could be running your life, then your heart chakra is blocked. So if you cannot forgive somebody, if you are unable to experience and express love, that means heart chakra is blocked. That can lead to serious problems in your relationships. So you are unable to experience love, you are unable to express love, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, accept नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब heart chakra की major issues हैं. Loneliness है, depression भी होगा. So all these things will come here. Clear? So if you have tasted this in some point of in your life, then you know that you are having a serious, not a heart attack, but serious problems of the heart. Relationship breakdown हुआ, किसी ने ditch किया, कोई relationship काम नहीं किया. So all these things will happen there. And generally people go through it once or twice in each अपनी life में 1-2 बार तो होता ही है. आजकल तो बहुत बार होने लगे. Yeah, but yes, everybody would have gone through it a couple of times. So let's take it that. Now when you heal the heart chakra or when with maturity comes, so you will be able to let go of the past. So let go जो आसानी से कर सकते हैं, that is a sign कि yes, your heart chakra is getting healed, right? And I have also given a very strong affirmation to many people जो मेरे से healing लेते हैं या वैसे भी affirmations में सिखाया होगा, which is that I love, accept, forgive and thank myself and all people in my life. How many of you have heard that statement from me? Yes. So that's a very powerful statement. I love, accept, forgive and thank whom? First myself. जब तक आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, अपने आप को love and accept and understand नहीं कर पाओगे, तब तक आप औरों को कर ही नहीं सकते. So you have to somehow heal yourself, heal your past, heal your inner child, and then you will be able to come to a level where you can say very confidently and declare it to the universe, I love, accept, forgive and thank myself and all others. And bring their image in your mind, and जैसे जैसे image सामने आए, उनको माफ करो. Ask for forgiveness or forgive them. These are the only 2 things that you need to do actually. So let me give you a small taste of how to do that. Those who have not done it before can do it. Imagine a person, not imagine, just think of a person in your life whom you are not able to forgive. कोई भी एक जना को सोच लीजिए. बहुत होंगे वैसे तो, पर अभी एक को सोच रहे हैं. भीड़ इकट्ठी मत करना. Take 1 person. और उसके लिए आपको बहुत गुस्सा भी हो सकता है. उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, उसको तो मैं इस जन्म में कभी माफ नहीं करूंगा या माफ नहीं करूंगी. गाली देने का मन कर रहा है, मशीन गन लेके उड़ा देने का मन कर रहा है. ये सब हो सकता है या हो सकता था, ऐसी कोई फीलिंग थी पहले.
There were many people in my life whom I wanted to actually gun down, but that was all in my thoughts. But yes, that venom or that anger or that poison was there in me. So if you are not able to forgive somebody, who is suffering? Suppose Mr. X है और मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ. Who is suffering? You are suffering. Absolutely. उसको तो पता भी नहीं है. If somebody has done something wrong to me 20 years back and I'm still holding it against him, I am the one who is suffering. वो तो 20 साल पहले जो किया वो तो भूल-भाल के अपनी नई कहानी में मस्त भी हो चुका है. He has removed me from his life for whatever has happened, right? But there are some people which we keep on holding on to it. हम माफ नहीं कर पाते. Yes, Amit ji, you wanted to share something? There was a very one-liner quote from Osho that I read somewhere. It was so powerful. It is in Hindi, which says कि किसी को भी दुख देने का जो बीज है वो किसके अंदर होगा? हमारे दिल के अंदर होगा. उसका जो पेड़ है वो कहाँ नर्चर करेगा? हमारे अंदर करेगा. और उसका जो फल है वो कहाँ गिरेगा? वो भी हमारे अंदर गिरेगा. तो या फिर मैंने उसका एक्सटेंशन किया, या तो सामने वाले का सर फोड़ दो या फिर उसका हृदय परिवर्तन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर दो. अगर वो दोनों ही हमारे बस की नहीं है तो अपने अंदर बीज रखने का कोई भी सेल्फिशली कोई फायदा नहीं है. Absolutely. Another way of saying the same thing. And as I mentioned in a few sessions before, उसमें एक और बहुत important quote है कि regret and resentment against anyone. If you have regret against somebody or if you have resentment against somebody and if you cannot forgive somebody, then it is like drinking poison hoping that the other person will die. खुद पॉइजन पी रहे हो और सोच रहे हो दूसरा मरेगा. अब देख और पॉइजन मैं पीऊंगा और तू मरेगा. होने वाला कुछ नहीं है उसको. वो तो उसको पता भी नहीं है कि तुम पॉइजन पी रहे हो. मरोगे आप. So you have to understand, if you cannot forgive somebody, you are in big trouble. So you have to forgive others not for their sake but for your own sake. The moment you understand this, then you will not be having any hatred for anybody. Whatever is done is done. जो करना था कर दिया. You still want to take any action, go and take any action, face the consequences. जैसा अमित जी ने कहा, सर फोड़ना फोड़ दो, but there will be legal implications. Both of you will end up in hospital or in police station. Ready for it, go for it. Otherwise माफ कर दो, ज्यादा अच्छा है. क्योंकि आप उसका सर फोड़ोगे, वो आपका मुंह तोड़ेगा, ये बीज तो आ ही जाएगा ना, इम्प्रिंट तो आ ही गया ना. अगले जन्म में फिर वहीं से फिर मिलेंगे. अगले जन्म के लिए और वायलेंस का बीज बो दिया आपने. फॉरगिव कर दो, बीज खत्म करो ना. इम्प्रिंट्स को लेके कहाँ जा रहे हो, उनको खत्म करो. बिकॉज अंदर अगर इम्प्रिंट रह गए तो जो अमित जी ने अभी कहा, पेड़ भी वहीं बनेगा और फल भी वहीं मिलेगा एंड यू विल बिकम ए कैक्टस. आपको अंदर अपने कैक्टस उगाना है या रोज फ्रेग्रेंस चाहिए या थॉर्न्स चाहिए, डिसाइड. सो दैट इज इंटेलेक्चुअली हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड लेट गो. तो कितने लोगों को क्लियर हुआ व्हाई यू शुड लेट गो? तो अगर कोई है जिसको माफ नहीं कर सकते हैं, अब माफ कर सकते हैं उनको, तो डिक्लेयर कर दीजिए, आई लव, एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड थैंक माई सेल्फ एंड मिस्टर एक्स for whatever has happened between us. Karmic accounts are over and now we exchange only love, peace and happiness. This will be a complete chapter closed. हमारे कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हो गए. Yes, कौन बोल रहे हैं? Shashi, I just wanted to ask you something. Yes. Like just now when you're talking about forgiveness, forgiving somebody in the past, you're talking. What if on a daily basis, if something is happening, तो then what does one do? मतलब उसको आप हैंडल करते जा रहे हैं, हैंडल, तो how is one supposed to be? What is यहाँ forgive करेंगे क्या? Yeah, I got that, Sylvia. So you can understand it that way. When I say something in the past can be 20 years before, it could be just 5 minutes before also. जो 5 मिनट पहले हुआ है इस सेशन में आने से पहले आपके साथ, वो भी पास्ट है, वो हो चुका है और उसका इम्प्रिंट आपके दिमाग में है. So you have to first forgive yourself and others for whatever has happened till now. Only then you can start fresh. That is why I often say, रोज सुबह उठ के बोलो आज का दिन फ्रेश डे है, पास्ट खत्म हो गया, आज today is the first day of the rest of my life. So you have cleaned up everything. रात को बोलो I forgive everybody and everything for whatever has happened today. Travel light. अगर कल नहीं उठे तो बीज लेके नहीं जाना है. So you finish off everything today and then you wake up tomorrow morning fresh. जो हुआ आज हो गया, खत्म करो. घर वाले हैं तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा आपको, बाहर वालों के साथ तो आप ये जल्दी कर सकते हो.
अगर फैमिली मेंबर्स हैं देन आल्सो यू डू द सेम थिंग. जो बोलना है बोलो ना. आई हैव दिस रूल एंड आई फॉलोड दिस आफ्टर शिवानी जी के कुछ वीडियोस में मैंने सुना ये. तो जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, उसके बाद नॉर्मल हो जाओ 10 मिनट बाद. जो आ जाओ चलो खाना वाना खाते हैं. करेक्ट. जो लड़ना है लड़ लो, जो पीटना है पीट लो. उसके बाद 5 मिनट बाद बोलो आ जाओ हो गया ड्रामे खत्म, ड्रामे तमाशे बंद करो, आ जाओ खाना वाना खाओ, मूवी देखेंगे, इसके बाद खाना वाना खाएंगे, गाने गाएंगे, मस्त. जो बोलना था बोल दो, दैट्स फाइन, बिकॉज यू विल हैव टू कीप ऑन. डोंट एक्यूमुलेट इट, टेक इट 1 to 1 उसी समय की सिचुएशन है. कभी होता है ना, रोटी अच्छी नहीं बनी है, मैं वाइफ से कैसी बनी, मैं रोटी जल गई है. ठीक है खा रहा हूँ, नथिंग बैड अबाउट इट, बट इट्स नॉट गुड एंड आई एम हैविंग इट, दैट्स फाइन. तुमको ये, तुमको वो, ये वो हो गया. तुमने पूछा, मैंने जवाब दे दिया, राइट. तुम भी खाओगे, तुमको पता लग जाएगा. एंड यू नो समटाइम्स इफ द कॉर्नर्स आर नॉट प्रॉपर्ली डन, आई रिमूव दैट इन अ सर्कल. मैं बीच वाला खाता हूँ, बाहर वाला छोड़ दे दो. And that is an indication, right? ठीक है, हो गया, आगे चलें. What do you want? तो है, निकाल दो उसे, उसके बाद आगे का सोचो. Next time either the quality will improve, otherwise the same quality will come here. Come on, I need to give me a break. I have to tell what is the feedback, correct? तो जो बोलना है बोलो, लड़ाई हो रही है तो होने दो, उसके बाद शांत हो जाओ और नॉर्मल हो जाओ. बिग डील लेके नहीं बैठना है, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना. वी आर एक्सपर्ट्स इन गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट टू ईच अदर. That is very very detrimental for the relationship. How many of us seen that? मुंह फुला के बैठ गए, तुमने ऐसे बोल दिया, 3 दिन बाद लगे बोले तुमने 3 दिन पहले मेरे को बोला था मेरी रोटी जल गई है. अबे यार 3 दिन पहले जली थी, अभी को जला रही हो, कहानी खत्म करो. Right? So you have to understand and then you move on. So Sylvia ji, I don't know whether I have answered you or not, but did you get an answer? Yep, got it. Okay, good. Amit ji, कुछ बोल रहे हैं? So definitely it is a very good and very initiative step. But उसके बाद मतलब ये सब जो आपने बताया बहुत अच्छा, obviously ऐसे करना चाहिए. But उसके बाद भी can there be a situation when still building further on what she asked, there could be a situation but still it is still not in a situation to continue to forgive. For how long can you forgive? Every day, week, month, years. Every time, because it is not for them, it is for you. Do you want to be peaceful? Keep forgiving. So my complete statement would be, when I would have completed, is that where it is a time to decide, okay, it is beyond a limit, and it is also then probably it moves to a category of self-love and probably creating distance from the energies, such energies. So see, I would say if you're talking of moving away, I will say only in case of physical violence, I would suggest move away. Otherwise, there is no reason why I would say move away from a relationship. Unless it is karmically done, and that is for divine to decide. You are nobody to decide karmically hamara relationship khatam ho gaya. You can get an intuition possibly, and then you go for a proper thing. No? I don't want to be in this relationship, whether it be a boyfriend, girlfriend, or a husband, wife, whatever. Then you have a one-to-one, very serious kind of a discussion. A boss or a man, yeah, it could be any other. Any relationship. See, boss and all that is temp. Anyway, you are not going to marry with the organization. It could be a friend or a sibling or a child. तो मैं एक strong commitment ले रहा हूँ, husband wife का ही बात कर रहे हैं, तो उसी के ले लेते हैं. तो if you want to forgive, तो करना ही पड़ेगा, because otherwise you will be agitated. Correct? आप agitated रहोगे वरना, तो आपके peace of mind के लिए बहुत जरूरी है कि you forgive, give up the story that you are having. Then have a one-to-one conversation. Then decide what is the action plan. Whatever action you have to take, you will take. I'm not saying don't take any action. Don't take whatever action you have to take. Be responsible for the consequences. So you're saying creating distance is not a wise or a self. Unless there is a physical threat, no, I will not suggest that. Energy-wise, we can manage it. Acceptance बढ़ाओ. आपका acceptance level बहुत low है फिर. Two people cannot think the same way. They will never understand the same thing. So there will be a gap. Big deal. For sure. Every time taking the same kind of negativity from that particular relationship, it could be brother, sister, or anybody. I mean, isn't it better idea to have your own peace of mind and sanity? That's why I said, if you want peace of mind, you have to first forgive. उसके बाद कुछ और करोगे, फिर बोलोगे कि hey, I don't like your behavior. Communicate ना, properly communicate करोगे आप. कि आपने ये जो किया मेरे को अच्छा नहीं लगा, so please don't do it again. Simple है.
If they continue to do it, then you give a second ultimatum. I told you that before. Now you're again doing it. Now tell me what is the consequence. I'm not ready for it. Yeah. So you will come to a conclusion. Then take a decision, whatever it is. Yes, Tony, you want to share something? Yeah, but see, as you're saying that distancing oneself from a relationship is not advisable, but you also said that if the relationship is karmically not working. I told you that is a divine will. That you cannot decide just like that. So if you are doing spiritual healing and if a karmically relationship is over, then you have to take a logical decision of breaking a relationship and moving on in life, which is okay. In your spiritual journey, you will do that. Many relationships you will have to give up and move on. That's fine. But it can be for any relationship. Any Shashi. relationship. It can be with any relationship. One relationship. can forgive with a good heart, with no ill feeling, and move on in life. Absolutely. Right? Absolutely. It could be a friend who is dragging you into Tamogun and you want to move to Satogun. You will break up. चाहे दोस्ती 20 साल की हो या 25 साल की हो. हाँ, कोई relationship भी हो सकता है जो 20 साल से चल रही है, but then one person is ready to move on to spiritual journey में आगे and दूसरा उसको पकड़ के रखा हुआ नहीं चलेगा, वो छूटना ही है. That is why we say when the relationship is bound to karmically उसका खत्म हो चुका है purpose, तो वो relationship फिर अलग होना ही है. So which in many cases when I do spiritual healing, I check that and I let people know, okay, this is time for you to move on. Correct? And some people I tell them stick on to it. Okay, healing se kaam ho jayega. Your life is on right now. So that yes, Amanji, you want to share something? Yes, sir. I just wanted to know that what you meant by all this is that even if there is some kind of closure within any relation, it should be done gracefully without any grudge. Obviously. Correct. And then it is good even if whether you meet or you don't meet a person, that's a different thing. As long as you are having the energy of love, peace and happiness for that person, whether you are staying with them or not, that is what is important. Okay, sir. Thank you. Forgive them, have an exchange of energy of love, peace and happiness with them. And then if they are in your life, continue the next day as a great day. Otherwise, you move on. That's fine. People don't have to leave their body and then the relationship has to end. No, you can end in a relationship even when people are alive and then you move on in your journey. That's it. Correct? Just like you leave an organization in Delhi and join an organization in Mumbai. So what is happening? It's the same thing. Your karmic relationship with that organization is over and then a new organization has started. The same thing. Correct? Okay, थोड़ा सा discussion ज़्यादा खिंच गया इसमें, but I hope people are getting clarity. Anybody who wants to share? Otherwise, we move on to the next step. ये हार्ट चक्र के पहले ही एनालिसिस में हम अटक गए. हाँ, अटके नहीं मतलब रुक गए. हाँ जी टोनी. Shashi, when a relationship is karmically over, does one automatically come to know about it, or how is one to know whether it is karmically over or not over? Good. So if you are in your sadhana, you will know. If you are in your sadhana means what? If you are on your yoga marg, on your spiritual journey, sadhana means you are on moving forward on the spiritual journey. Spiritual journey में पीछे गिर रहे हो तो पता नहीं चलेगा. Spiritual journey में आगे बढ़ रहे हो तो indications मिल जाएंगे. Somebody will guide you. You will get divine intuition and you will know that you are ready to move on and complete that relationship and you are ready for that. So आपको पता लग जाएगा. ठीक है? So did I answer you? Yeah. Good. So now the question comes कि हार्ट चक्र से अगर ऊपर हमको जाना है तो आपकी साधना कैसी होनी चाहिए. But meanwhile let me just answer something that came to my mind when I was answering you, Tony. जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हो आपको सिद्धियां मिलती हैं. Right? The only thing that you have to be aware of is that if you are really good in your sadhana, you will get some special powers. But that special power should not be detrimental in the sense that अटक नहीं जाना है वहां पे. अरे मैं तो बहुत बड़ा सिद्ध बन गया हूँ. No, you are not even halfway there. आपकी साधना से खुश होके आपको अच्छे कर्म करने के लिए भगवान ने कुछ पावर्स दिए हैं. That's all. Right? So you have to be very careful about not to get overwhelmed with that. So those siddhis
and then carry on whatever you're doing. Like in my healing, there are many things that I come to know through divine intuition. I call that siddhi. Maybe aura feedback or whatever I do. But that is not something for me to stop and get into self pride and all that. No, it's my way of how divine has blessed me to be more contributing to people. That's all. Correct? So you have to be understanding that. साधना में आप लगे रहो, आपको इंट्यूशन मिल जाएगी आपके लिए क्या सही है क्या नहीं. और अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम साधना की बात करें तो इट इज वेरी क्लियर दैट वी हैव ऑफन डिस्कस दिस. योग के आपके चार पाथ हैं, and there are 4 paths of yoga that we follow. So one is karma yoga, the path of action; bhakti yoga, the path of devotion; jnana yoga, the path of knowledge; and raj yoga, which is a path of meditation or concentration, focus of mind. Clear है ये? यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको हार्ट चक्रा में आना है, यानी कि नीचे के लोअर चक्रा से ऊपर जाना है, तो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी साधना में? अगर आप बैठे हैं, आज हम बात कर रहे हैं वैसे हार्ट चक्रा की, तो ऑब्वियसली हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए अनकंडीशनल लव यानी कि डिवोशन यानी कि भक्ति योग की हम बात करेंगे. क्लियर है ये? बट लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योर साधना? आपकी साधना में भक्ति योग का क्या महत्व है और किस हिसाब से आप उसको देखते हैं कि आपकी जर्नी आगे चल रही है? तो लेट्स हैव सम पीपल शेयर एंड देन आई विल क्यूमुलेटिव पॉइंट बना के उसको हम समराइज करेंगे. अच्छा, कौन बोलना चाहेंगे? भक्ति योग में आपका एक्सपीरियंस क्या है एंड हाउ डू यू सी योरसेल्फ मूविंग ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी? यस नीता जी. जी, सो भक्ति योग जब शुरू हुआ, यानी कि जब बहुत साल से भगवान के अंदर, तो एक टाइम आया जब वहां नहीं बैठने से एकदम रेस्टलेसनेस होता था. वहां पे नहीं जाने से लगता था जो मेजर इम्पोर्टेंट काम आज के दिन का है, चाहे दिन कितना भी सक्सेसफुल हो, हैप्पी हो, हैपनिंग हो, बट ऐसा लगता था कि कुछ निकल गया हाथ से, कुछ मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज. तो वो एक फेज था जो बहुत स्ट्रांगली वो करता था, पुल करता था उस तरफ. फिर धीरे धीरे वो पीस पे आ गया कि नहीं ठीक है, इतना कर लिया और कर लेंगे, जुड़े मतलब कॉन्स्टेंटली. उसके बाद एक लेवल आया जब even if I'm not sitting with him or even if I'm not thinking, it's constantly there. So I feel the presence of God with me all the time now, whether I am sitting or if I'm doing anything. So that Very is good. what I feel that bhakti. बहुत बढ़िया. भक्ति योग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये. तो इसको मैं पहले एक वर्ड में समराइज कर दूं. भक्ति योग के 3 क्वालिटीज बोलते हैं, तो उसमें है, एक है सर्वदा. सर्वदा मीन्स ऑल द टाइम. So when you feel that the divine is with you all the time, sarvada, तो शास्त्रों में यही बोला गया, एक ही वर्ड देते हैं. So that is what you have explained. So if you feel connected to the divine all the time, भक्ति योग का एक important characteristic या एक point cover होता है, which is sarvada. Very good. हाँ जी अनीता जी. By the way, पहले अनीता जी को मैं कांग्रेस बोल दूं. उन्होंने आज एक बहुत बढ़िया एक भक्ति सॉन्ग रिकॉर्डिंग भेजा था और वो मैंने पूरा देखा. 4 मिनट का था वो, राइट? पूरा देखा. एंड गुड, नाइस वॉइस एंड गुड सिंगिंग अनीता जी. सो गुड जॉब. थैंक यू सर एंड सभी मेंबर्स को नमस्ते. बस वो भक्ति में तो बस इतना ही जो मेरे बात समझ आई है. आवाज आ रही है मेरी वहां पर? हाँ बिल्कुल आ रही है. ओके. जितना मुझे लगा है कि इसमें ना, जब हम आगे जैसे भगवान की कृपा से आगे बढ़ते हैं, मैंने एक कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है कि जिनके प्रति भी हमारा श्रद्धा है, और एक ऐसी स्थिति जब आती है हमारी लाइफ में, तो हम लोग उनकी कृपाओं को, उनकी ऊर्जा को हम अनुभव कर पा रहे होते हैं उस समय. जैसे अभी टोनी भैया ने बात कही, तो वो इंट्यूशन हमें पता चल होने लग जाती है लाइफ में कि जैसे कार्मिक अकाउंट का ही बात हुई, तो वो पता चल जाता है कि हमारा इस व्यक्ति के लाइफ में इतना रोल है या सामने वाले व्यक्ति का इतना रोल है. तो एक अंदर से ही आंसर आता है कि बस अब इतना रोल है, अब इसके बाद तुम्हें आगे बढ़ना है. अगले स्टेप के जब तक हम एक स्टेप नहीं छोड़ेंगे, अगले स्टेप पर कैसे चले जाएंगे हम लोग? आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी की 2-4 सीढ़ियां स्टेप्स चढ़ने होते हैं, तो ये एक तरह से स्टेप्स पे आगे बढ़ना ही होता है, चाहे हम साधना का कोई भी मार्ग अपना रहे हैं.
तो उसमें जब इंट्यूशन हो रही होती है तो उसको फिर पूरे हृदय से स्वीकार करना चाहिए कि भी हाँ ये मेरे को ये इंट्यूशन हो रही है, तो ये मजाक नहीं है। जैसे कई बार हमें अंदर से आवाज आती है, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज ही होती है, जिसको कभी कभी हम इग्नोर करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम अंदर से प्योर होते जाते हैं ना, वो क्लैरिटी इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो वास्तव में वही चीज पूरी की पूरी सामने परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारे आगे लेके आ रहे होते हैं। वो डिपेंड्स है कि ये हम, बताइए कि आपकी किस साधना से ये मिला, क्या मिला मत बताइए, वो तो हमको मालूम है। अच्छा सर, क्या मेरे कर रहे को थे आप भक्ति योग में, आपने ऐसा क्या किया जिससे आपको ये सिद्धि मिली या ये ज्ञान मिला, ये बताइए। मेरा जो सबसे बड़ा है कि वो तो एक तो पहले पूरा समर्पण होना चाहिए जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा है। उसके बाद जो आपको रास्ता दिखाया गया, जैसे हमारे महापुरुषों ने दिखाए रास्ते, संतों ने दिखाए, भगवान ने दिखाए अलग अलग रूपों में, तो उस पे महापुरुषों के दिखाए रास्तों पे चलने का एक अंदर से पूरा 100% श्योर होना चाहिए कि अब वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं तो वो बहुत हमारे लिए ठीक है। और उस पे अगर हम जैसे हम अपने टीचर पे भरोसा करके चलते हैं भी ये इनके पास हम सीख के ही जाएंगे, या अपने पेरेंट्स पे करते हैं, तो उसी तरह से हमें उनके ऊपर भी पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले गुरु तो पेरेंट्स ही हमारे गुरुदेव कहते हैं, उसके बाद आपको स्कूल के टीचर्स मिले या जो भी हमें सिखा के जा रहा है वो हमारा टीचर है। लेकिन जो धर्म के रास्ते पे हमें सदगुरु मिलते हैं लाइफ में, छोटी सी एबीसी सीखनी होती है तो हमें स्कूल जाना पड़ता है। तो इतना बड़ा अध्यात्म का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो तो बिना गुरु के तो संभव हो ही नहीं सकता। और बस उनकी कृपाओं को अनुभव करना, और जहां पर विश्वास, एक ही महाराज जी हमारे कहते हैं एक ही जगह डिग करो, खड्डा खोदो, जगह जगह नहीं, एक ही जगह करोगे तो कभी ना कभी तो पानी निकल आएगा वहां से। ओके, थैंक यू अनीता जी। थैंक यू मैं सर। जो आपसे सुनना चाह रहा था वो एनीवे ठीक है, मिल गया पॉइंट, तो मैं उसके ऊपर आगे मैं बात बोल दूंगा, क्योंकि आपके मुंह से वो सुनना चाहता था, वो नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं। बट बहुत बढ़िया चीज आपने बोली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज अनीता जी फॉर दैट, क्योंकि भक्ति योग में इनका इनके गुरु के प्रति जो आदर है और जो डिवोशन है वो काफी सराहनीय है, और उन्हीं की वजह से इनको काफी कुछ ज्ञान मिला है, और काफी कुछ इनको जो नॉलेज मैं बोलूंगा या इंट्यूशन जो मिली है वो सिर्फ भक्ति से मिली है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस। जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं, ज्ञान योग में हम बोलते हैं साधना करो तो सिद्धि मिलती है, लेकिन भक्ति योग में हम कहते हैं सिर्फ भक्ति करो, ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। भक्ति करो, अपने आप गुरु कृपा आ जाएगी। भक्ति करो, बी डिवोटेड, तुमको जो चाहिए गुरु जी दे देंगे। गुरु मंत्र जो हम बोलते हैं, कितने लोगों ने गुरु मंत्र लिया बाय द वे? अपने गुरु से गुरु मंत्र मिला है किसी को? कुल गुरु होंगे या कोई भी गुरु होंगे आपके, गुरु मंत्र मैंने लिया हुआ, राइट? सो अनीता जी ने भी लिया हुआ। गुरु मंत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो गुरु कृपा से आपको मिलता है, गुरु मंत्र इज एक्चुअली गॉड इन द सीड फॉर्म, और ये शास्त्रों में लिखा गया, ये वेदांता में लिखा गया, भक्ति योग में उसमें गुरु मंत्र इज गॉड इन द सीड फॉर्म। लेकिन जब वो इतनी आसानी से भी गुरु से मिल जाता है ना, तो हम उसकी अहमियत या उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। इतना सिंपल, कुछ और होना चाहिए। वी शुड बी सम हैवी 1 घंटे का प्राणायाम करने के बाद और मेडिटेशन करने के बाद मेरे को कुछ मिलना चाहिए, तब वो सही होगा। तो वी कीप लुकिंग फॉर अदर थिंग्स। गुरु मंत्र अपने आप में आपके लिए काफी है। आई स्टिल रिमेंबर, आई डोंट वांट टू शेयर दैट गुरु मंत्र क्या था, लेकिन जब मेरे को गुरु मंत्र मिला था, वी यूज्ड टू डू दैट। करता था, माला जपनी होती थी तो माला करते थे, 10 माला रोज करनी होती थी, करते थे। रिलीजियसली किया, 2-3 साल किया, 4 साल किया, 5 साल किया, उसका थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन उसके बाद माला की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली अंदर चलने लग गया। एंड आई वुड डू मेनी अदर थिंग्स, जैसे मैं हीलिंग में भी था तो हीलिंग भी करता था, भक्ति योग भी करता था, जो मेरे को मिला मैं सब करता था। बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोवर ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो बोलते थे कि चारों योगों को मिला के आगे बढ़ो, तो तुमको जिस रास्ते से आगे बढ़ना होगा बढ़ जाओगे। तो कोई चारों अपने आप में सक्षम है, बाय द वे। आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक ज्यादा बेटर है, सारे ही इक्वली गुड हैं, सब अपने आप को समाधि तक ले जाएंगे, चाहे वो राजयोग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो या ज्ञान योग हो। लेकिन स्वामी जी का कहना ये था, आप अपने हिसाब से उनको जोड़ के एक बढ़िया सा एक साधना में अपने ढाल लो। जैसे सुबह मेरे को ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये, रात को ये। So you have your own timings and then you follow all these 4. The best is follow all the 4.
चारों योग को फॉलो करो and you will attain the spiritual journey faster. That was his teaching. So I would do all the four. मैं सारी करता था, लेकिन गुरु मंत्र वाला जो था that was the easiest. That is why people say कि भक्ति योग बहुत आसान है, अगर आपको सरेंडर आ जाए तो गुरु मंत्र मिल गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु मंत्र के फुल डिवोशन के साथ लगे रहो, आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, आपको सिद्धियां भी मिल जाएंगी जो चाहिए, और आपकी लाइफ को आराम से समाधि तक पहुंचा देंगे। लेकिन हम में इतनी वो तड़प होनी चाहिए या इतनी डिवोशन होनी चाहिए, अगर वो है देन यू आर थ्रू विथ योर भक्ति योग ओनली, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आपका हार्ट चक्र इतना खुल जाएगा कि डिवाइन अंदर बस जाएंगे। और इसीलिए भक्ति में मैं आपसे ये, अनीता जी, मैं आपसे ये सुनना चाह रहा था, उसमें भक्ति में क्या होता है, जो गुरु मंत्र मिलता है उसको एक नेम और एक फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, तो कृष्णा की मूर्त, गोपाल की मूर्त सामने आ गई आपके, राइट? और यू कैन हैव एनीबॉडी, लॉर्ड रामा और कुड बी जीसस, जिसकी भी फोटो आप सामने ला सकते हो। तो एक नेम और एक फॉर्म होना चाहिए भक्ति योग में। ज्ञान योग में इनफाइनाइट है, ज्ञान योग फॉर्मलेस है, नेमलेस है, नाम और फॉर्म उसमें नहीं होता है। लेकिन भक्ति योग में नेम एंड फॉर्म है, इजी फॉर माइंड टू फॉलो। लॉर्ड कृष्णा, यस वेरी गुड, लॉर्ड कृष्णा मूर्ति सामने रख ली, और वो अपने हार्ट चक्रा में अगर मैं अपने विजुलाइज कर लूंगा कि हार्ट में वो लॉर्ड कृष्णा आ गए हैं एंड हरिओम 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 जपना है, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी टू गो टू समाधि। लेकिन दिमाग मानता नहीं है ना, इतना आसान नहीं हो सकता। सो आई एम लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस, सो आई केप्ट ऑन लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस, बट यस भक्ति योग वाज सफिशिएंट फॉर मी। तो वो भक्ति योग में जो करना था आगे किया। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अनीता जी सर, ये जो है ना आसान मार्ग है भक्ति। कारण यह है कि इसमें एक बार समर्पण करना है, उसके बाद सब अपने आप से डिवाइन हमारे साथ हमारे को देना शुरू कर देते हैं, जो उनको अपनी आशीर्वाद देने हैं या कुछ है। ज्ञान योग जो है ना, वो व्यक्ति को रूखा सूखा बना देता है। भक्ति में रस अधिक होता है मेरे अनुभव के हिसाब से। आप अभी शांत रहिए, अभी सिर्फ भक्ति योग की बात कर रहे हैं। सिर्फ भक्ति योग में सिर्फ इतना बोलना है आपको कि उसमें नेम एंड फॉर्म है, उसमें सरेंडर भाव से काम हो जाता है। ज्ञान योग में क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जो आपने बोला वो रीजन नहीं है ज्ञान योग में। ज्ञान योग टफ क्यों है? सुनना आसान है, समझना आसान है, अप्लाई करना आसान नहीं है। जन्म लग जाते हैं, बहुत जन्म लग जाते हैं अप्लाई करने में। अब मैं आपको बोल रहा हूँ आप डिवाइन हो, सुन लिया आपने? हाँ जी। मान लिया आपने? हाँ मान लिया, आई एम डिवाइन। रियलाइज हो रहा है? नहीं। बात करते हुए आप फिर वही बात करोगे अपनी रियलाइजेशन में, क्या आई एम बॉडी, आई एम बॉडी मान के ही आप जिंदगी में जी रहे हो। आई एम डिवाइन सुन लिया, आई एम डिवाइन अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन रियलाइजेशन में नहीं आया। You have not made divine real in your life. That's why Gyan Yoga is tough. That is why Vedanta is tough. Vedanta wisdom is the highest Gyan Yoga, right? तो वो मुश्किल इसलिए है, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। पर भक्ति योग में क्या है, सिर्फ सरेंडर के भाव पे निकल जाओगे आप। आपको कुछ ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको कोई ग्रेजुएशन पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, कोई भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको गुरु मंत्र मिला, गुरु के समर्पण में चले जाओ, गुरु के थ्रू आप भगवान को पा जाओ। तो एक नेम है, एक फॉर्म है। आप कृष्णा बोल लो या अपने गुरु जी को बोल लो, जो आपके कुल गुरु हैं, जो आपके गुरु जी हैं, गुरुदेव हैं, उनकी छवि आप अपने हृदय में बिठा लीजिए। आपका भक्ति योग का मार्ग खुल गया। दैट इज वाई दिस इज इजी। बट सरेंडर करना हर एक की बस की नहीं है अनीता जी। भक्ति योग में प्रॉब्लम क्या है, सरेंडर 100% होता ही नहीं है किसी से। गिने चुने 0.00001% ऑफ दिस पॉपुलेशन विल बी एबल टू सरेंडर। इसीलिए भक्ति में समाधि बहुत कम लोगों को मिलती है। सर एक जैसे बात एक मिनट अनीता जी। भक्ति योग में समाधि का मतलब है, वी आर टॉकिंग ऑफ कौन, यानी कि ये जो श्री कृष्णा के जो भक्ति हैं, मान लीजिए मीराबाई, फुल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, एंड ऑफ कोर्स वी नो कि उन्होंने कैसे समाधि पाई, राइट? कंप्लीट वो यूनियन विद द गॉड, डिवाइन के साथ फुल कनेक्शन। इतना समर्पण मुश्किल हो जाता है। इसलिए भक्ति योग अकेले कभी कभी भारी पड़ता है समाधि के लिए, लेकिन हार्ट चक्र को खोलने के लिए परफेक्ट है। हार्ट चक्र को खोलने के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आपको फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस सब लाने के लिए सिर्फ आपको भक्ति करनी है। और इतना पावरफुल है ये भक्ति, है मुझसे
कि there are many statements. I would say I'll just remember one. उसमें गुरु जी बोलते हैं गुरु मंत्र को लेके अगर आप जप रहे हो और ताली बजा रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर जितने पाप के पंछी हैं वो उड़ जाएंगे. Is as simple as that. तो गुरु मंत्र बोलो और जपते रहो, क्लैप करते रहो हार्ट के आगे, तो आपके दिमाग के अंदर जो भी पंछी बैठे हुए हैं किसके पाप के पंछी जो हैं वो सारे उड़ जाएंगे. It's so simple. So you don't have to do any kind of ज्ञान for that. भक्ति करो and you will be free. Right? Yes, अनीता जी, good. सर इसी को ही रामायण में आता है कि राम नाम सुंदर सुख ताली है, जिससे हमारे संशय विहग उड़ावन वाली जो हमारे संशय रूपी पक्षी हैं उनको वो उड़ा देती है, बशर्ते कि आपको राम नाम में भरोसा 100% होना चाहिए. और अब जो सरेंडर की बात करी, मैंने अपने गुरुदेव से एक बार हरिद्वार में पूछा था कि महाराज जी पूर्ण समर्पण क्या होता है. जब हम इस रास्ते पे चल के मैं शुरू करा था, तो गुरुदेव ने कहा कि पूर्ण समर्पण ये है कि आपके अपने गुरु पे या जिससे ईष्ट पे जिसको भी आप मानते हो उसके ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर वो एक बार ही कह दे ना कुएं में कूद जाओ तो आपको कूद जाना है. फिर ये नहीं सोचना कि मैं गिरूंगा. आपको इतना भरोसा होएगा तो वो सत्ता अपने आप आपको कहीं हाथों से आके बचा लेगी. इतना भरोसा होना चाहिए, तब आपका पूर्ण समर्पण है. तो उस तरह से फिर अपना डेली अपने आप को समर्पित करना पड़ता है. रोज कर्तापन का वो अभिमान अर्पण करना पड़ता है. कुछ भी अच्छा करे महाराज जी आपको अर्पण है, भगवान आपको अर्पण है. कहीं ये अभिमान मुझे उसमें से एक पर्दा ना डाल दे, बिकॉज ईगो इज द फेवरेट डिश ऑफ गॉड. थैंक यू अनीता जी. तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, द मोमेंट यू आर इनटू भक्ति यू विल ट्रांसेंड योर ईगो. जो अनीता जी अभी बता रही हैं, ईगो को आप ट्रांसेंड कर जाओगे तो आप सोलर चक्र से बाहर आ जाओगे. दैट इज द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Yes, so let's have some other people share. और कौन शेयर करना चाहेंगे? कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए भक्ति के इस डिस्कशन से? सर इससे कोई डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकता. होल्ड ऑन अनीता जी, बाकी लोग भी हैं, मुझे पूछने दीजिए उनसे. सर कोई नहीं, मतलब अब डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, मैं इससे एग्री नहीं हूँ. शांत रहिए और उनको भी बोलने दीजिए, थोड़ा चेक तो करने दो मुझे कहाँ पे है वो. ओके कैरी ऑन. कौन बोलना चाहेंगे? अमित जी. डेफिनेटली सरेंडर, समर्पण, एक फोकस, धारणा उस चीज पे और कंप्लीटली सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और शायद मैं आपसे पूछना चाहूंगा एज अ गुरु, मैंने ये भी देखा, और शायद अपने साथ ही नहीं बट विद लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो, एवरी लिविंग क्रिएचर, जैसे हम कहते हैं सब कुछ निरंकार है या परमात्मा निरंकार, उसका कोई आकार नहीं है. As you rightly also said कि there has to be a form and one more word that you used, name and form. Name and form. मैं इकलौता नहीं हूँ, पर I'm sure that you will probably endorse to this idea that it can be even an object and not necessarily a person. where जैसे मूर्ति पूजा की बात करते हैं, अल्टीमेटली डिबेट कर सकते हैं कि अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट ही तो है स्टोन का, कैल्शियम का. मेरे यहाँ पे नहीं, इट्स अ क्लीनर, इट्स अ ग्लास क्लीनर, जिससे मैं चश्मा साफ करता हूँ. And I'm sure that you will agree to it. There are people who would find complete surrender to this piece of cloth and would find the supreme consciousness into it and completely surrender. भक्ति योग में जैसे राधा ने या मीरा ने जो किया था कृष्णा के लिए, जबकि वो अलग अलग जनरेशन में पैदा हुए थे, कोई फॉर्म था ही नहीं, बट एक कैरेक्टर की इमेज थी. So I think मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, and I'm sure that you agree. And there are people who can, and बाकी सब सत्य है जो भी सबने बोला, but it does not have to be only coming from a living human being. Even an object, when you completely surrender, when you think that a complete Paramatma consciousness lies in that, it can work. Yes, it can definitely work if you are fully devoted to your parents. जैसे श्रवण कुमार थे, was completely devoted to his parents. पूरी लाइफ उन्होंने surrender कर दी. Correct? So there can be people, living people also, and there can also be objects, as you said. You know, मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं. आपने किसी को आइडल मान लिया और उसकी आप पूजा कर रहे हो. बट मेन थिंग इज दैट जब हम नाम और फॉर्म की बात करते हैं, इट इज समथिंग व्हिच हैज टू कैप्चर योर सरेंडर 100%. Yeah, very true. So for that, maybe sometimes if you find a crystal or something like that, it may not be 100%, and that can be a slightly detrimental. तो नेम एंड फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक और चीज बताता हूँ इसमें. See, suppose why do we think we have so many rituals? हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में होता है बहुत सारे रिचुअल्स हैं.
मंदिर में जाते हैं, घंटियां बजा रहे होते हैं, अगरबत्ती जला रहे होते हैं, धूप जला रहे होते हैं, देन आरती उतारते हैं, गाना गा रहे हैं, सत्संग हो रहा है, डांस हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर मैं आपको सिर्फ बोलूं कि ये गुरु मंत्र है, मान लो एक गुरु मंत्र है, मिल गया आपको श्री कृष्णा का, ठीक है, हरे रामा हरे कृष्णा ले लेते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा ये गुरु मंत्र है, इसको जपो और दैट्स इट। तो आपने गोपाला, अपने माय गोपाला, हाँ दैट्स इट, दैट्स हाउ भक्त रिलेट्स। तो माय गोपाला, आपने कृष्णा की एक मूर्ति ले ली एंड देन आप उनको एक आराम से अपने पूजा रूप में आपने रखी और उसके बाद आप उसको हरे रामा हरे राम कृष्णा करके जप करो। अब आप जप करने बैठ रहे हो तो माइंड भाग रहा है, तो हरे रामा हरे कृष्णा बोलने के लिए तो माइंड पे छोटा सा परसेंटेज लग रहा है, बाकी 10% लग रहा है, बाकी 90% माइंड भाग रहा है इधर उधर, ऑफिस भी होके आ गया, पड़ोसी के घर भी होके आ गया, पार्क में भी होके आ गया, तो माइंड स्टेबल नहीं हो रहा है, मेडिटेशन नहीं हो रहा है आपका, करेक्ट। जप कर रहे हो, माला जप रहे हो तो भी आपका ध्यान इधर उधर भाग रहा है। तो ये जो अभी मैंने बोला, जो नींदा जी ने बोला था, सर्वदा all the time being devoted to the God is actually not possible initially possible नहीं है। तो आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा। सुबह उठ के 6 से 6:15 15 मिनट रखो बेशक। टाइम, समय यानी कि स्थान समय आपको फिक्स करना पड़ेगा। सुबह 6 से 6:15 बजे तक पूजा रूम में इस जगह पे मैं बैठूंगा और मैं ये आरती करूंगा। सो व्हेन यू आर डूइंग एन आरती यू कैन नॉट रन अवे, माइंड विल नॉट बी रनिंग अवे। आप दिया जला रहे हो, आप अगरबत्ती जला रहे हो, आप 8 बार आरती उतार रहे हो, उसके बाद आप एक भजन गा रहे हो, उसके बाद आप बैठ रहे हो। सो दीज आर थिंग्स वेयर योर माइंड विल बी फोकस्ड। घंटी बजा रहे हो एंड साउंड इज ऑलवेज गोइंग अलॉन्ग विद द लाइट। डिवाइन लाइट की बात करें, लाइट के साथ हमेशा साउंड जाता है। तो अगर आप कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हो या फिर भजन गा रहे हो या घंटी बजा रहे हो, दिस विल हेल्प यू, दीज आर आउटसाइड सोर्सेस which will help you to focus. Then you can slowly increase it from 15 minutes to 1 hour and then it will become something which is automatically there, जैसे नीता जी ने शेयर किया। Then you are always connected with the God 24 hours. Initially you will have to fix your time. तो आपको टाइम फिक्स करना है, जगह फिक्स करनी है और एक ही टाइम पे बार बार करना है। Then your mind will accept it. इस तरीके से अगर होगा तो सरेंडर भाव जल्दी आए। Then whatever Amit ji you said is perfect. उसके बाद वो आ जाएगा। बट द पॉइंट हियर इज, हम जो भी बात कर रहे हैं हार्ट चक्र को खोलने के लिए भक्ति योग पे, पॉइंट सिर्फ इतना है, अगर हमको ईगो को ट्रांसेंड करना है, समर्पण, पूरा समर्पण अगर करना है, तो भक्ति योग इज द बेस्ट एंड द इजीएस्ट मेथड, बट यू हैव टू फोकस ऑन इट स्टेप बाय स्टेप। तो सर्वदा, ऑल द टाइम। सेकेंड क्वालिटी है भक्ति योग का जो हम बोलते हैं इन ऑल कंडीशन, इन ऑल स्टेट्स। खुश हो तो भी करना है, दुखी हो तो भी करना है। और इसमें डिस्टिंक्शन क्या है मालूम है? डिस्टिंक्शन ये है कि भक्त को दुखी होने का अधिकार है ही नहीं। यानी तो ये आपको मालूम होगा, गुरुजी ने सिखाया होगा आपको कि अनहैप्पीनेस, ए अनहैप्पी भक्त इज नॉट अ भक्त। हमारे वैष्णव ट्रेडिशंस में तो बोलते भी हैं कि अगर आप भगवान के सामने दुखी हो तो आप भक्त होने का दर्जा खो देते हो। भक्त को दुखी होने का हक है ही नहीं। If you surrender everything to your ego to God, how can you be unhappy? It is considered a sin. Unhappiness in the presence of divine is a sin. तो कहते तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, पहले कान पकड़ो, माफी मांगो कि मैं दुखी हो गया क्योंकि मैंने गुरु कृपा पे या भगवान की कृपा पे डाउट किया। So I am not a भक्ता। अगर मैं सही भक्त हूँ तो मैं दुखी हो ही नहीं सकता। Surrender everything to the divine. That is the quality of bhakta that we are talking about, right? Okay, so let's have some more people share. वरना मैं तो बोलता जाऊंगा, and we are already crossing. Sir, I have a question here. Yes, ma'am. Suppose you see your own people in pain, okay? तो automatic दुख तो होता ही है। क्या दोबारा बोलिए? अगर आपके लोगों को, I said if I see my own people in pain, okay, okay, when they are not well, when there is a situation which is something more than you know, and it is out of your control, so pain to hota hi hai, like it's not that the pain is not there. So
So how do you मतलब जो अभी आपने कहा ना कि भक्त को दुखी होने का अधिकार ही नहीं है. हाँ, अगर आप भक्त हो तो आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है, तो यानी कि उस समय आप भक्त नहीं है. Okay. And my another question is, जो अभी आपने बोला जो हम पढ़ते हैं, जितने भी मंत्रास पढ़ते हैं and all, तो so many times I've experienced that when I do that, I am not able to, मतलब मन में होता है वो, साउंड नहीं होता. Sometimes it happens, you know. I am very, मतलब अंदर ही अंदर बोल के I am very happy. So is it necessary that you should be voice होनी चाहिए बाहर ऐसे? नहीं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं. मन में बोलना मन में बोलिए, बाहर बोलना बाहर बोलिए, लेकिन अगर बाहर बोलेंगे तो आपके कान सुनेंगे, आपके ईयर्स भी एक्टिव हो जाएंगे, आपका माइंड और एक्टिव हो जाएगा, वहीं पे रहेगा. That's all I'm saying. The moment you use more faculties, आपका माइंड वहीं पे रहेगा. Okay, sir. अगर आप हाथ से ऐसे दिया घुमा रहे हो तो माइंड वहीं पे होगा ना कि 8 बार करना है. Right, right. जब भी कर रहे हो, माचिस जला रहे हो, पूरा ध्यान माचिस जलने में है ना, तो आंखें भी वहीं हैं, हाथ भी वहीं हैं. जब भी करे जा रहे हो तो सब कुछ वहीं रहेगा. घंटी बजा रहे हो तो साउंड भी है, तो आपका माइंड वहीं पे रहेगा. वरना माइंड घूमने चला जाएगा बड़ी आसानी से. आप बैठिए ना, 6 से 6:15 बजे तक मेडिटेट करने की कोशिश करिए. फर्स्ट डे अगर आप बैठेंगे तो माइंड भाग जाएगा. मतलब हाँ, तू मेडिटेट कर, मैं आता हूँ. Correct? So you will not be able to do that. So initially you will have to do some outside support. तो घंटी बजाइए, दिया जलाइए, जो भी करना है करिए. पहले तो खुद फ्रेश होके आएंगे, आप नहा धो के बैठेंगे. मंदिर में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा फ्रेश होना पड़ेगा उस समय. तो भक्ति योग में ये थोड़ा है, स्वच्छ रहना है और भगवान की मूर्ति को आपने धो के ला के रखना है, फिर दिया जलाना है. वट एवर यू डू, even if it is just lighting a candle, you will have to light a candle. Right. So you are doing something, your mind will be there. That is important. Correct? So Correct. that is how you practice bhakti yoga. Any doubts? Any questions? We will continue this next week also because there are a lot of things still to be covered and मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने आज बोला भी नहीं है. So I want all of you to share because this is very, very important. This is the first step how you are going to transcend your ego. अपने ego से बाहर कैसे निकलना है, अपने ego को transcend कैसे करना है. Bhakti yoga is very, very important. And we will also touch a little on karma yoga. Karma yoga is not action, it is action being one with the divine. अब फुल सरेंडर में हो आप डिवाइन के, और उसके बाद जो आप जो भी कर्म करोगे, अब भक्ति में नहीं करे, भक्ति के बाद कर्म भी तो करोगे आके, तो लोगों की सेवा करना. राइट? सो यू कुड बी गिविंग रोटी कपड़ा या किसी को भी कुछ दान दे रहे हो आप, तो ऑल दैट विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ कर्म योग, बट इट कैन ऑल्सो बी फुल ऑफ भक्ति. गोपाला के नाम पे आप दे रहे हो, right? So all that can also be part of bhakti. So karma yoga and bhakti yoga are the easiest way to overcome your basic nature. Basic nature means ego nature. तो अगर आप लालची हो, greedy हो, आपको उस नेचर से बाहर निकलना है, ईगो से. Start giving donations, start charity, लोगों की सेवा करो, ज्ञान दो, सिखाओ. बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, जो भी आप देना चाहो. Give free service. Many people are attached to NGOs, right? You can give them funds, you can do whatever. So, but you have to again understand कि it should not be again to inflate your ego. बहुत लोग चैरिटी देते हैं और पार्क में बेंच लगा देते हैं और उस बेंच पे नाम भी लिखवा देते हैं. हाँ ठीक है, दिया है तो उनको मालूम होना चाहिए मैंने दिया है, सबको मालूम हो मैंने दिया है. तो वो फिर थोड़ा सा ईगो कहीं ना कहीं आ गया ना. नाम लिखने की जरूरत क्या थी, करना ही था, कर देते. बड़े बड़े स्टेजेस पे जाके 5-5 लाख रुपए की डोनेशन दिखा के चेक की फोटो दिखा रहे होते, फोटो खींच रहे होते हैं. ये सब ड्रामेबाजी है. मे बी जेन्युइन, बट देन इतने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है. कहीं ना कहीं ईगो है ना. यू वांट टू सैटिस्फाई योर ईगो कि मैंने दिया है, तो ईगो आ ही गया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि दान करते समय, कर्म योग करते समय और भक्ति योग करते समय ईगो को छोड़ना है. इसलिए कर रहे हैं, इसलिए ईगो में दोबारा नहीं पड़ना. आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा. राइट? Okay, we are already 4 minutes over time, so I will take a last 1 or 2 questions and then we close the session. किसी को कुछ पूछना हो या शेयर करना हो, क्या लेके जा रहे हैं आज के सेशन से, फटाफट कोई बोलेंगे तो. और जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है, I want them to say. So Baljinder Kaur, Pooja Srivastava, Parth, you are there.
You didn't switch on your video today. Okay, if you want to share something. Sumanji, I think she's still in office. So anybody who would like to share before we close? Neeta ji, आप बोलना चाहेंगे? Go ahead. हो गया? Yeah. So when you are in this Bhakti Yoga, I have realized that a lot of things I never read, lot of things I didn't know, but अपने आप ही जैसे रास्ता बनते जाता है, खुलते जाता है, चीजें like you don't even have the awareness कि आपने ये decisions कैसे लिए, कैसे हुआ, वहां तक कहाँ पहुंच गए, वो सारी चीजें बहुत beautiful feel होती है सर, और एकदम से अपने आप एकदम easy way में होते जाता है. So that is the beauty of Bhakti Yoga. Yes. जैसे ज्ञान योग में तो आपको बहुत साधना करनी पड़ती है तब सिद्धि मिलती है. भक्ति योग में तो यू जस्ट सरेंडर, आपको सिद्धियां और ज्ञान अपने आप मिल जाएगा जितना चाहिए. मैं ये नहीं बोलता ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, लेकिन जितना आपको ज्ञान चाहिए, जितनी आपको सिद्धि चाहिए, उतनी आपको मिल जाएगी. इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो जाएगी, आपको लगेगा अंदर से आपकी आवाज आ रही है. इट्स ऑल डिवाइन ग्रेस. तो भक्ति योग से डिवाइन ग्रेस मिलता है. दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग. डिवाइन गुरु कृपा अगर मिल गई तो आपको जिंदगी पार हो ही गई. तब तो ये जन्म के आपके आने वाले सारे जन्म पार हो गए. करेक्ट? ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड. यस यस समझ जी. सो भक्ति योग से अगर डिवाइन ग्रेस है, सो बाकी चारों योग, बाकी तीनों योग से probably can we do an analogy? सबसे नहीं, सबसे सबका रास्ता समाधि तक ही जाएगा. Correct. रास्ते थोड़े से अलग अलग हैं, but they are all interlinked and they cross each other at various points. Correct. That's all I can say. One more question. So bhakti yoga, it corresponds to heart chakra. If we can say, how about the other three yogs? Let's say Gyan Yoga will correspond to third eye and crown. Third eye. And Raj Yoga will corresponds with third eye. Meditation है ना. And Karam Yoga? कर्म योग तो आपका बॉडी वाला है ना, तो सोलर चक्र है. एक्शन तो आपके बॉडी से ही होगा ना. करेक्ट, बहुत बढ़िया. गॉट इट. तो कर्म योग एंड भक्ति योग इज व्हाट विल हेल्प यू टू ओवरकम द ईगो एंड मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी. पहले आप यही दोनों करोगे, बट यू विल गेट द डिवाइन कॉलिंग. जब आप इस मार्ग पे हो, अगर आप देखें, मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, सबने या तो कर्म योग से शुरू किया या भक्ति योग से शुरू किया. मेरी जर्नी भी वैसे ही हुई थी. कर्म योग से हुई थी, started learning healing and all that, yoga meditation and all that, वो सब किया. तो it was basically for me, it was a journey which went on from karma yoga to bhakti yoga to raj yoga, and then of course the whole culmination came in the ज्ञान योग. ज्ञान योग हमेशा लास्ट में वो अहम ब्रह्मास्मि वाला है ना, तो भक्ति योग से थोड़ा सा डिफरेंट लेवल है उसका. क्योंकि भक्ति योग में जितना मर्जी आप वननेस में चले जाएं, देयर विल बी अ स्मॉल गैप बिटवीन द भक्त एंड द भगवान. वो यूनिटी कॉन्शियसनेस लाना मुश्किल होता है. बट ज्ञान योग तो शुरू ही वैसे होता है, अहम ब्रह्मास्मि, दैट्स इट. यू आर ब्रह्म, सो दैट्स द एंड ऑफ द जर्नी. नाउ यू कीप रियलाइजिंग इट, दैट्स योर प्रॉब्लम. नहीं. हाँ जी अनीता जी, लास्ट वर्ड्स आपकी तरफ से हो जाए. सर जैसे हमारे कोई कलयुग का, ये जो कलयुग का ना, चाहे कितने भी इसमें विपरीत परिस्थितियां, कमियां हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा यह कलयुग केवल नाम आधारा. मतलब कहते हैं अगर इसमें कुछ नहीं कर सकते, जिसमें जिस नाम में आपकी श्रद्धा है जपने में, वो आप करते रहोगे ना, बाकी के सारे योग तो अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं. मैं एक एग्जांपल अपना अनुभव बता रही हूँ. अगर आप चाहो तो आज सभी लोग, आपका मन माने तो कर सकते हो, कि भगवान का नाम है वो तो हमेशा अमृत ही होता है. जिसमें भी मैं जैसे पहले सोचती थी राधा राधा बोलते कृष्ण कैसे चले आएंगे. फिर एक बारी ऐसे, मैं रात को पता है 1-2 बजे की बात है, तो मैंने आज राधा नाम का करती हूँ. आप बिलीव करो इतना आनंद. और जब राह ना मिल रही हो, करके देख लेना, 101% गारंटेड है. आप थोड़ी देर राधे 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 कर दो, आपको 101% सही राह मिल जाएगी. करना भरोसे से. और वो इतना आनंद आता है ना कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. लेकिन आपको आज बहुत बड़ा एक भगवान महाराज जी सामने बैठे हैं, तो एक अंदर से एक विचार आया है, अगर उसको अप्लाई आपने करना है, आपके सामने एक फल रख दिया गया, खाना आपको है. अब हमने राधा नाम जपा है तो हमें उसका आनंद पता चलता है. आप भी जप के देख लो, आप भी अगली सेशन में बोलोगे वाकई में रास्ता तो मिल गया हमें. Good. Thank you all of you. Thank you. सही कह रहे हो आप, बहुत सही कह रहे हो. मुझे पता है what you're saying. It does wonders. It is definitely, it is wonderful. बहुत बढ़िया चीज़ है. But what you have to understand is what you get from a general mantra and what you get from a guru mantra is different.
मैं ये कहती हूँ सब में करो। ऐसे मेरे कल घर में सत्संग था, अभी मतलब माँ के भजन चल रहे थे माता के, उसके बाद जब राधा रानी का भजन चला, सब आनंद, इतना आनंद बरसा, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। मेरे वो दूसरे मोबाइल में वीडियोस हैं, मतलब सब सुध बुध खो के पूरा समर्पण। और वो जो डिवाइन की एनर्जी तो सब जगह है, लेकिन वो प्रकट हो जाते हैं सर। वो एकदम से आप उसके सामने ऐसे लगता है कि बस अब हम खो गए, अब हमें कुछ चाहिए नहीं, सारी डिमांड्स खत्म, सारी डिजायर्स खत्म, सारी शिकायतें खत्म, बस हम आपके बन गए, हम हो गए राधा रानी के, बस। हरिओम। करके देखना राधा रानी का नाम, चाहे 10 मिनट करके देखना, यू विल रियली फील दैट एनर्जी। टोनी भैया आज आप जरूर करना, आज करना, मुझे कल बताना कि कैसा लगा, मतलब धर्म से ऊपर उठ के आगे बढ़। थैंक यू। उनको म्यूट करना पड़ता है। बहुत पैशनेट हो आप। Okay, yeah, but the point here, what I was saying is, whatever you are picking up as a mantra, if you take that as a guru mantra, then you are getting God in the seed form. ये ध्यान रखें। वनिता जी, आप भी जो मंत्र का जाप कर रही है, गुरु जी से मिला है, वो गुरु मंत्र की कृपा है जिससे आपको डिवाइन ग्रेस मिल रही है, किसी भी मंत्र से नहीं होता है। हाँ, तो ये ध्यान रखिए। तो गुरु जी की कृपा है, इसलिए उस गुरु मंत्र से आपको इतनी सिद्धियां और ज्ञान मिल रहे हैं। ये भक्ति योग का सार है, ये पकड़ लेंगे आप तो फिर आपका काम हो जाएगा। वरना आप सिर्फ ये भगवान से ये बोलिए कि मेरे को कौन सा मंत्र है, तो आपका सोल आपको गाइड करेगा और जो मंत्र आप बोलना चाहें उसको जपिए। आपको फ्रीक्वेंसी से पता लग जाएगा, जैसे जैसे आप जपेंगे आपको पता लग जाएगा यही मंत्र है मेरा, तो फिर उस मंत्र को पकड़ लीजिए। आप खुद भी अपने गुरु बन सकते हैं। योर सोल विल गाइड यू, राइट? So with this, we come to the end of the session. Thank you for your interesting participation, and I hope the session was valuable for all. Thank you very much. Enjoy a great day till we meet next Wednesday. Good night. Bye-bye. Good night. Thank you, sir. Thank you. Take care. Bye-bye.